السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم، سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید اکمل پینا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ چین کے لیب میں کووڈ-19 کورونا کے بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، WHO کی تحقیق۔ مملکت سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1147 کورونا متاثرہ مریض۔ ملک میں کورونا وائرس کے مشترکہ مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ مرکزی وزارت صحت و وزارت داخلہ کی جانب سے آج شام پریس بریفنگ دی گئی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا دہلی کی موجودہ صورتحال پر بیان۔ ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی جانب سے ریاست کے مسلمانوں کے نام پیغام دیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 35 نئے متاثرہ مریض۔ محکمہ سرو شکشا ابھیان اور محکمہ کی جانب سے کڑپا کے 35ویں ڈویژن میں ضروری اشیاء اور ماسک کی تقسیم۔ کڑپا میں MDH گروپ MD الحاج نوید احمد صاحب کی جانب سے کڑپا کے امام و مؤذنین میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ کڑپا میں بسم اللہ نگر میں آج ٹیپو گروپ اور الحسین گروپ کی جانب سے SMD شفیع صاحب کی زیر نگرانی 100 خاندانوں میں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ چین کے لیب میں کووڈ-19 کورونا کے بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، WHO کی تحقیق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ہفتہ اعلان کیا تھا کہ مرکزی چین ووہان کی ایک لیب سے کورونا وائرس ایجاد ہوا۔ اس کے جواب میں WHO نے کہا کہ تمام شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس لیب کی بناوٹ نہیں بلکہ جانوروں کی اصل ہے اور جانوروں سے پیدا ہوا ہے۔ مملکت سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1147 کورونا متاثرہ مریض۔ مملکت میں کورونا وائرس کے متاثرہ مشترکہ مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 11,631 ہو گئی۔ کویت وزارت صحت ترجمان ڈاکٹر عبداللہ الصمد نے آج اپنی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کویت میں 85 نئے کورونا متاثرہ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جس سے مملکت میں یہ تعداد بڑھ کر جملہ 2080 ہو چکی ہے۔ 2 افراد کی موت واقع ہوئی، جس سے مرنے والوں کی تعداد 11 کو پہنچ چکی ہے۔ کویت وزارت صحت ڈاکٹر باسل الصباح نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تاحال کویت میں جملہ 412 کورونا سے متاثرہ مریضوں کو مکمل صحت یاب کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مملکت کویت میں اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے مشترکہ مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین میں لگاتار اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1329 نئے کورونا مریض مشترکہ پائے گئے، جس سے ملک میں یہ تعداد بڑھ کر 18,985 ہو گئی ہے۔ تاحال 603 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ معاملے مہاراشٹر میں ہیں، جہاں پر متاثرین کی تعداد 4,669 ہے، جبکہ تاحال 232 لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ 572 افراد صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں۔ دہلی میں یہ تعداد 2081 ہے، گجرات میں تعداد 2066 ہے، ہریانہ میں 254، جموں کشمیر میں 368، کرناٹکا میں 415، کیرلا میں 408، مدھیہ پردیش میں 1540، پنجاب میں 245، راجستھان میں یہ تعداد 1576۔ اس طرح ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت و وزارت داخلہ کی جانب سے آج شام پریس بریفنگ دی گئی، جس کے تحت ملک کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں کے 35,852 سیمپلز جو تھے وہ کل ٹیسٹ ہوئے۔ ان 35,000 اور سیمپلز میں 29,776 سیمپلز، یہ 201 ابھی لیبورٹریز ہیں آیوشمان نیٹ ورک میں، ان میں سے ہوئے 6,076 یہ 86 پرائیویٹ لیبز میں سے ہوئے۔ کل گرہ منترالیہ دوارا وبھن ضلعوں کی لاک ڈاؤن کی استھتی کی گراؤنڈ لیول پر سمیکشا کے دوران یہ سامنے آیا ہے کہ کئی سیکٹروں میں جہاں 20 اپریل سے اترکت گتیودھیوں کو انومتی پردان کی گئی تھی، وہاں پر اچھی شروعات ہوئی ہے۔
कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की मौजूदा सूरत हाल पर बयान। वहां पर जारी हुकूमत की जानिब से इमदाद की तफसीलात से आगाह करते हुए 47 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई और अभी इस वक्त 1603 केस एक्टिव हैं। अभी फ़िलहाल 1603 पेशेंट्स हैं। इनका जब हमने एनालिसिस किया, अच्छा कल जो है, कल के दिन हमने 1397 सैंपल लिए थे, लगभग 1400 सैंपल लिए थे। उसमें केवल 78 केस पॉजिटिव आए हैं। हमने जब इनकी सैंपल की टेस्ट सबकी एनालिसिस की तो एक ये निकल के आ रहा है, वैसे तो भगवान करे कोरोना किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको कईयों को कोरोना हो जाता है वो अपने घर ठीक होके चले जाते हैं। जिन लोगों की मौत हो रही है कोरोना की वजह से, उनको हमने एनालाइज किया तो पाया कि 80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से रियासत के मुसलमानों के नाम पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने माह रमजान में अपने घरों में ही तमाम इबादत करने की अपील की है। పవిత్ర రంజాన్ మాసం మరో 5 రోజుల్లో మొదలవుతుంది అన్న సంగతి మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. మీ అందరికీ కూడా ఈ రంజాన్ మాసంలో మామూలుగా అయితే 5 సార్లు మనమంతా కూడా నమాజ్కు పోతాము. రాత్రిపూట కూడా అందరం ఒకచోట ఏకమై తరావీ నమాజ్ కూడా చేస్తాము. ఈ రంజాన్ మాసంలోనే మనం దాన ధర్మాలు ఇంకా ఇటువంటివన్నీ ఎక్కువగా కూడా చేస్తూ ఉంటాము. ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి మాసంలో మనం చాలా పవిత్రంగా భావించి ఈ మాసంలో మనం అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ అందరికీ కూడా ఇటువంటి విన్నపం చేయాల్సి వస్తూ ఉంది అని అంటే నాకు కూడా మనసుకు చాలా చాలా కష్టంగానే ఉంది. కానీ దేశంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతూ ఉంది అన్న సంగతులు మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయాలే. అందరూ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ కరోనా అన్న ఈ వైరస్ను అధిగమించేందుకు గత కొద్ది రోజులుగా అన్ని రకాల చర్యలను కూడా చేపడతా ఉన్నాం. శ్రీరామనవమి వచ్చింది, ఉగాది వచ్చింది, గుడ్ ఫ్రైడే వచ్చింది, ఈస్టర్ పండగ కూడా వచ్చింది, ఈరోజు రంజాన్ కూడా రాబోతూ ఉంది. అన్ని పండగల్లోనూ దేవునికి మనం ఇంకా దగ్గరగా ప్రార్థనా స్థలాలలో గడిపే పరిస్థితి నుంచి ఇళ్లలోనే ఉండి ప్రార్థన చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితిలోకి అందరం కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితిలో పోవాల్సి వస్తూ ఉంది. ఇందులో భాగంగానే మీ అందరితో కూడా నా రిక్వెస్ట్, ఈ రంజాన్ మాసంలో మీరందరూ కూడా సహకరించాలని, అందరూ కూడా ఇళ్లల్లోనే ప్రార్థనలు చేసే విధంగా చెప్పాలి అని, అందరికీ కూడా జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితులు అందరికీ కూడా చెప్పి అందరినీ కూడా ఇళ్లలోనే ఉండి ప్రార్థన చేసుకునేటట్టుగా సహకరించాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను. ఇది చాలా మనసుకు కష్టమైన మాట అయినా కూడా చెయ్యక తప్పని పరిస్థితుల్లో మీ అందరినీ కూడా ఈ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో దయచేసి అందరూ కూడా సహకరిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ.
रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का रुझान जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 नए मुतासिरा मरीज। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर जनाब यूसुफ अली खान ने बताया, आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 नए कोरोना वायरस मुतासिरीन के इजाफे से आज मुतासिरा मरीजों की जुमला तादाद 757 हो गई है। 96 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 22 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। आंध्र प्रदेश के 2 अजला करनूल और गुंटूर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जहां पर ये वबा में अभी तक कमी के कोई आसार नजर नहीं आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला करनूल में 10 नए कोरोना मुतासिरा का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ताहाल यहां पर मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 184 हो गई है। 5 अफराद की मौत हुई है। गुंटूर जिला में 24 घंटों के दौरान 9 नए मुतासिरीन का इजाफा हुआ है, जिसकी तादाद बढ़कर 158 हो गई है। यहाँ पर 2 अफराद की मौत भी हो चुकी है। 15 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत के दूसरे अजला में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिला कड़पा में 6 नए मुतासिरीन का इजाफा हुआ। वेस्ट गोदावरी में 4, कृष्णा में 3, जिला अनंतपुरम में 3 मुतासिरीन का इजाफा हुआ। जिला कृष्णा जुमला 83 मुतासिरीन के साथ रियासत में तीसरे मुकाम पर है। अजला नेल्लूर में 67, चित्तूर में 53, कड़पा में 46, प्रकाशम में 44, वेस्ट गोदावरी में जुमला 39, अनंतपुरम में 36, ईस्ट गोदावरी में 26, विशाखापट्टनम में 21। रियासत के 2 अजला श्रीकाकुलम और विजयनगरम में ताहाल कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है। ये अजला कोरोना फ्री करार दिए गए हैं। महकमे सर्व शिक्षा अभियान और मोपमा की जानिब से कड़पा के 35वीं डिवीजन में जरूरी अशिया और मास्क की तकसीम। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश जनाब एसबी अमजद बाशा का इजहार मसर्रत। कड़पा के 35वीं डिवीजन में आज महकमे सर्व शिक्षा अभियान और मोपमा की जानिब से गरीब अफराद में जरूरी अशिया और मास्क तकसीम किए। इस मौके पर नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश जनाब एसबी अमजद बाशा ने कहा, कड़पा में मुख्तलिफ सोसाइटी और अहले खैर हजरात की जानिब से लॉकडाउन से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए आगे आना बहुत मसर्रत की बात है। उनके हमरा सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी, मोपमा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम मोहन रेड्डी मौजूद थे। अमजद बाशा ने कहा, खानगी इदारों की जानिब से तो गरीब अफराद में मुख्तलिफ चीजों की तकसीम की जा रही थी, अब सरकारी ओहदेदारों ने भी इसमें शामिल होकर गरीबों की मदद का बेड़ा उठाया है, जो कि काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करने की ख्वाहिश की। कोरोना वायरस की वबा से बचने का एक ही तरीका है, अवाम घरों तक महदूद रहें। हर किस्म की जरूरी अशिया उनके घरों तक पहुँचाई जाएगी। अवाम भरपूर ताउन दें। अमजद बाशा ने कोरोना वायरस के इंसदाद में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर, ऐसे नाजुक हालात में अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस, सफाई अमला, वॉलंटियर्स और अखबारी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में वाईएसआर कांग्रेस नौजवान कायद इंचार्ज कड़पा एसपी अहमद बाशा, 35वें डिवीजन वाईएसआर कांग्रेस इंचार्ज शमशीर, सर्व शिक्षा अभियान का अमला, मोपमा का अमला ने शिरकत किया। कड़पा में एमडीएच ग्रुप एमडी अलहाज नवीद अहमद साहब की जानिब से कड़पा के इमाम और मुअज्जिनीन में जरूरी अशिया की तकसीम। उलमा की मदद करने से सुकून क़ल्ब हासिल होता है। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा का बयान। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर जनाब यूसुफ अली खान ने बताया, आज कड़पा में एमडीएच ग्रुप के एसएमडी नवीद अहमद की जानिब से कड़पा के इमाम और मुअज्जिनीन को 2 लाख रुपयों पर मुश्तमिल अशियाए जरूरी के किट्स तकसीम किए गए। ये किट्स नायब वजीर आला जनाब एसबी अमजद बाशा के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर अपने खिताब में अमजद बाशा ने कहा, कोरोना वायरस से मुतासिरा गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए अहले खैर हजरात को आगे आना चाहिए। गरीबों की मदद करके इत्मीनान क़ल्ब हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एमडीएच ग्रुप के इस कदम की सताइश करते हुए दूसरों के लिए भी काबिल तकलीद अमल करार दिया। अमजद बाशा ने कड़पा को कोरोना वायरस से पाक जिला बनाने में अवाम के ताउन की अपील की। अवाम के मुकम्मल ताउन से ही इस मर्ज से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अवाम समाजी दूरी का ख्याल रखें, अपने घरों से बाहर न निकलें,
अमजद बादशाह ने मुसलमानों से माह रमजानुल मुबारक के मौके पर अपने घरों में ही नमाजें तरावी का एहतमाम करने की अपील की और मुसलमानों से कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए रमजान के बबरकत महीने में अल्लाह ताला से दुआ करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर वाईएसआर पार्टी कड़पा इंचार्ज एसबी अहमद बादशाह, शेख अयाज गोल्ड मार्केट जॉइंट सेक्रेटरी और दूसरे मौजूद थे। कड़पा में बिस्मिल्लाह नगर में आज टीपू ग्रुप और अल हुसैन ग्रुप की जानिब से एसएमडी शफी साहब की जेर निगरानी 100 खानदानों में 10 अशिया पर मुश्तमिल जरूरी अशिया की किट्स तकसीम किए गए। टीपू साहब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अल हिंद कंसल्टेंसी, टैक्स वे आंध्र प्रदेश जोनल हेड, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स ACFE, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर IIA ने कहा कि ये इमदाद बिला तफरीक मजहब और मिल्लत तकसीम की गई है। उन्होंने कड़पा के अहले खैर हजरात से बिला तफरीक मजहब और मिल्लत इमदाद देने की अपील की। उस मौके पर यम के ज्वेलर्स के मालिक महबूब खान, शेख रिजवान, सैयद कादर मुहिउद्दीन, सैयद अल्लाह बख्श, शेषु कुमार, सैयद शफीउल्लाह, सैयद फरदान हुसैन भी मौजूद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहे आने वाले खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।